السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا على أبويك من قبل من إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربی اسر ولا توسر وتمم بالخیر. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سورہ یوسف جو ہے ہمارے یہاں پر ویکلی پروگرام میں اس کا جو مطالعہ ہے وہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم جو ہے آیت نمبر 5 تک جو ہے وہ کور کر چکے ہیں ہماری پچھلی نشستوں میں. آج جو ہے آیت نمبر 6 کے اوپر بات ہونی ہے، اور ہماری جو سیریز ہے، یہی آج کا ایپیسوڈ ہی ایسا ہوگا لاسٹ جو اتنا ڈیٹیل طلب ہوگا کہ جس کے اندر ہم قرآن کی ایک ہی آیت کے اوپر جو ہے بات کریں گے. اس کے بعد جو ہمارا پیٹرن رہے گا اس سورہ کو کور کرنے کا اس سیریز کے اندر، وہ ہم جو ہے یہ رک کر جو ہم ایک سیشن کے اندر ایک ہی آیت کے اوپر ڈسکشن لے رہے ہیں، یہ نہ لے کر کے ہم جو ہم نے اسٹارٹنگ کے اندر سورہ یوسف کی پکچر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ڈفرینٹ کمپوننٹ ہے یوسف علیہ السلام کی اسٹوری کے اس سورہ کے اندر. کمپوننٹ بائی کمپوننٹ، یا پھر یہ لے لیجئے کہ جتنے بھی کمپوننٹ ان سورہ کے اندر ہے، کوشش یہ کریں گے کہ ہر سیشن کے اندر ایک کمپوننٹ جو ہے وہ سورہ کا ہم کور کر لیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ جو ہماری یہ جو سیریز ہے وہ وقت کے اوپر مکمل ہو جائے. خیر، لاسٹ جو ہے وہ ہم نے آیت نمبر 5 کے اندر 5 کے بارے میں بات کری تھی لاسٹ سیشن کے اندر، اور ہم ابھی پہلا ہی جو سین ہے سورہ یوسف کا اس کے اندر ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین ایک باپ اور بیٹے کی جو کنورسیشن ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. بچہ جو ہے وہ گھبراتے ہوئے اپنے والد کو ایک خواب اپنا بتا رہا ہے جس کے معنی بھی اسے معلوم ہے، اور اس کے معنوں نے اصل میں اسے بے چین کر دیا ہے. اس کے معنوں نے اسے بے چین کر دیا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آج کی جو 11 ستارے اور سورج اور چاند جو ہے اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد میرے 11 بھائی ہیں، اور جو چاند اور سورج اس سے مراد میرے والدین ہیں. تو وہ بڑی ڈسٹربڈ اسٹیٹ کے اندر آ کر اپنے والد کو جو ہے اپنا احساسات اور اپنے جو خواب ہے وہ بتا رہے ہیں، اور پھر بچے کا خواب سن کر والد کیا رسپانس دیتے ہیں اس کو آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر بیان کیا گیا ہے. جب آیت نمبر 5 پر بات کر رہے تھے تبھی ہم نے یہ بات رکھ دی تھی کہ جو یعقوب علیہ السلام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے یوسف علیہ السلام کے خواب کے اوپر جو رسپانس دے رہے ہیں، ایک پوزیٹیو رسپانس اور ایک نیگیٹو رسپانس ہے. اور اسٹارٹنگ کے اندر جو ہے انہوں نے جو یہ سمجھ لیجئے کہ نیگیٹو رسپانس جو ہے کہ اس خواب کے معنی کیا نکلتے ہیں، اور اس خواب کے معنوں سے وہ کون سی چیزیں جو تم نے نہیں کرنی ہے وہ پہلے بتایا ہے، اور جو اللہ رب العالمین اس خواب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو نعمتیں دے رہا ہے اور ان کے خاندان کے اوپر جو نعمتیں اپنی پوری کر رہا ہے اس کا ذکر انہوں نے سیکنڈ رسپانس کے اندر کیا ہے. اس رسپانس کو ہم نے آج پڑھنا ہے. خیر، آیت نمبر 5 کے اندر اور یہ بھی ایک بات سامنے رہے کہ بھائی جب فیملی کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں تو بڑا ایک مسئلہ رہتا ہے. نیگیٹو چیزیں شیئر کرنے کے اندر آدمی گھبراتا ہے، اور پازیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے شیئر کر دی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر جو یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں، یعقوب علیہ السلام نے جو پہلی بات بتائی کہ کیونکہ وہ اپنے سارے بچوں کی عادتوں سے واقف ہیں تو وہ جان رہے ہیں کہ اگر یہ خواب میرے بچے نے اس یوسف نے دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیا تو امید ہے جیسا کہ ان کا کردار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی پلاٹ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک یونیورسل بات بھی یوسف علیہ السلام کو سمجھا دی کہ جب انسان اس طرح کی پلاٹنگ کے اندر یا
सेल्फ डाउट के अंदर घिरता है और सेल्फ डाउट के अंदर घिरकर दूसरों पर उंगलियां उठाना शुरू करता है, तो असल के अंदर ये सारी की सारी प्लानिंग होती है शैतान की, जो इंसान का खुला दुश्मन है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ये बात बताई गई कि भाई आपके भाई जो है आपके साथ ही करेंगे, तो होना ही, फिर उससे तो यही होगा ना कि बंदा जो है वो मायूस हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की चीज कर रहे हैं और मेरे घर वाले ही मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो मायूसी के अंदर जाता है। तो शैतान जो है वो इंसान के दिलों के अंदर मायूसी डालता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो अपनी नेमतों से जो है इंसान के दिलों को मुनव्वर कर देते हैं। ये एक फर्क है कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इब्लीस को हमारे दिलों के ऊपर एक्सेस दिया है ना, तो इब्लीस उस एक्सेस के जरिए से क्या चाहता है, क्या करना चाहता है कि एक तो मायूसी हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। हमने शैतान के ऊपर तो बात कर ली थी। शैतान के दो नाम है कुरान के अंदर, एक तो शैतान खुद और एक इब्लीस है। शैतान के क्या मायने होते हैं वो पिछली जो हमारी बात हुई थी आयत नंबर 5 के अंदर वो गुजर चुके, कि वो जो बुक्स के अंदर भरा हो, गुस्से के अंदर भरा हुआ और दूसरों के अंदर जो है गुस्सा और जो जलन है वो पैदा करना चाहता हूँ, उसे शैतान कहते हैं, क्योंकि उसके खुद के अंदर भी यही है। तो जो इंसान जो क्रिएशन के अंदर खुद के अंदर होता है वही दूसरों के अंदर वो इंस्टिल करना चाहता है। तो शैतान जो है वो बुग्ज, हसद, कीना जो है वो लोगों के अंदर पैदा करना चाहता है। उसके लिए वो मुख्तलिफ जो है ट्रिक्स के साथ और मुख्तलिफ वसवसों के साथ इंसानों के ऊपर हमलावर होता है, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। लेकिन एक दूसरा नाम उसका इब्लीस है जो कुरान के अंदर आता है, और इब्लीस के मायने जो होते हैं मायूस हुआ, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से बिल्कुल मायूस हो चुका है कि अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे तो मामला खराब होने ही होने। तो वो ये चाहता है कि अल्लाह के जो दूसरे बंदे हैं उनके अंदर भी ये मायूसी है वो चरम पर पहुंच जाए, वो भी ये सोचने लगे कि भाई अपना तो कुछ भी नहीं हो सकता, अपना तो मामला जो है वो खराब होने ही होने। अब चाहे मैं कितनी ही तौबा कर लूं, कितना ही अल्लाह की फरमाबरदारी कर लूं, कितना ही सीधी राह के ऊपर चलने की कोशिश कर लूं, जो गलती जो गुनाह मुझसे हुए हैं ये किसी भी शक्ल के अंदर माफ नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे स्टेज के ऊपर पहुंच चुका हूं कि अब मेरी माफी नहीं होने वाली। शैतान जो है वो मुसलसल यही बातें जो है डालता रहता है बंदे के दिलों के अंदर। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम का जो एक काम है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका एक काम उनके जिम्मे एक ड्यूटी लगाई है, वो ये ड्यूटी भी लगाई है कि भाई आपने जो मेरे जो बंदे हैं उनको इस बात से मुतारिफ कराना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बंदे से गलती हो गई तो माफी नहीं होगी, तौबा के रास्ते बंद हो गए, माफी के सारे रास्ते बंद हो गए, कि अब गलती हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतकाम और सजा जो है वही उसकी तकदीर के अंदर लिख दी गई है। नहीं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजता है, तो जो उनको नाम दिया गया है ना बशीर, खुशखबरी देने वाले, तो किन को खुशखबरी देने वाले हैं असल के अंदर ही, कि नबी अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से ये भी लोगों को बताया गया है कि कुल्लू बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताउन तव्वाबून, कि बनी आदम जो है, आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो तो खता करने वाली ही है, मुसलसल खता करने वाली है, उनसे गलतियां होती ही हैं। आदम का जो बच्चा है वो गलतियां करेगा ही करेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल ने ये भी बताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताने के बाद, कि भाई सबसे बेहतरीन खता करने वाला वो है जो कि तौबा कर ले, तव्वाब हो जाए, जो पलट कर आ जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, जो वापस से रुजू कर ले, जो वापस से पलट आए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब। तो असल के अंदर ये जो तौबा का जो एक ऑप्शन है, शैतान ये चाहता है कि इंसान के जहनों से ये जो तौबा का एक मरहला है वो पूरी तरह से ब्लर हो जाए। दीन के अंदर ये बात सिखाई गई, एक मोटी सी बात, कि 99 कत्ल करने वाले करने के बाद 100वें पर भी अगर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा मांग ले, माफी मांग ले खुलूस दिल के साथ मौत के गरगरे से पहले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। तो ये इतना बड़ा मकाम जो है वो तौबा का है। तो जो बात याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर इंस्टिल कर रहे हैं ना, वो ये कि अपने भाइयों से कभी नफरत ना करना। असल में जो दुश्मन है, जो इंसान इस तरह की गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो शैतान के बहकाने के ऊपर होता है, और शैतान मुसलसल अपनी ये कोशिशें और काविशों में लगा हुआ है अपनी पूरी फौजों के साथ, कि इंसान किसी न तरह किसी न किसी तरह हसद का शिकार हो जाए, मुझे क्यों नहीं चुना गया, इस तरह के सेल्फ डाउट के अंदर चला जाए, खुद के वजूद के ऊपर सवाल उठाने लगे, और जो उसका मेन पर्पस था अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बनने का, उससे वो डिविएट हो। तो याकूब अलैहिस्सलाम यही बात कर रहे हैं कि तुम्हारे भाई असल के अंदर उस स्ट्रेटेजी या शैतान का जो दाव है उसके अंदर गिरफ्तार हो गए हैं। तो हमें इनसे नफरत नहीं करनी, इनसे दुश्मनी नहीं करनी, बल्कि
जो शैतान जो इनको बहका रहा है, असल के अंदर इंसानों का असल दुश्मन वो है, इंसान आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ये कोर प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। और ये जो पूरा जो रिस्पॉन्स याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को दे रहे हैं ना, इसमें से हर एक लफ्ज, हर एक बात, उस जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कैरेक्टर, हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सर ने पूरे सूरह यूसुफ का मुताला करा हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं, मतलब सूरह यूसुफ के अंदर जो कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ होने वाला है, तो हमें देखने को ये मिलता है कि ये जो दो आयात के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम ने जो बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर डाली है ना, पूरी जिंदगी भर ये बातें उनको फायदा देती हैं। तो वालिद की कही हुई बात का सही टाइम के ऊपर इस तरह का इम्पेक्ट आता है बच्चे की जिंदगी में। खैर, तो ये बातें याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को बताने के बाद कि भाई अपने भाइयों को ये बात मत बताना, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इस वजह से ये जो तुम्हारे भाई हैं इस तरह का गलत चीजें तुम्हारे खिलाफ कर सकती है। तो बंदा नेगेटिव हो जाए कि यार हमारे घर वाले ही मेरे साथ इस तरह की चीजें करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के अंदर अपने भाइयों के खिलाफ नफरत पैदा नहीं करना चाह रहे हैं या नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि जो रियलिटी है उससे अवेयर करना है। रियलिटी जो है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर ली जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हमारे कोई मसला ही नहीं है, अरे भाइयों में तो इतना चलता ही रहता है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रियलिटी से अपने बच्चे को अवेयर कर जा रहे हैं। और अब रियलिटी से अवेयर करने के बाद उसे ऑप्टिमिज्म दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं कि अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब दिखाकर तुम्हारे साथ ये किया है। आयत का तर्जुमा इस तरह से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वकज़ालिका यज्तबीका, याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इसी तरह से तुम्हारे रब ने तुम्हें चुन लिया है। यानी कि जो ख्वाब दिखाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है तुम्हें चुन लिया है। मैं तो बड़ी मुंतजिर था कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर अपनी जो नेमत है नबूवत का वो ऐलान करेगा। ये ख्वाब दिखाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर जो अपना एहसान है वो जाहिर किया है। वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और वह तुम्हें सिखा रहा है और आगे भी तुम्हें बातों का सही मतलब समझना सिखाएगा। वाला आली याकूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन कब्लु इब्राहीम व इसहाक, तो वो और तुम पर और याकूब अलैहिस्सलाम की आल पर अपनी नेमत उसी तरह से पूरा करेगा जैसे उसने अपनी नेमतें इससे पहले तुम्हारे दो अजदाद यानी कि तुम्हारे 2 फोर फादर्स इब्राहिम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर पूरी की थी। इन्ना रब्बा का आलिमुन हकीम, यकीनन आपका रब बहुत इल्म वाला और बहुत हिकमत वाला है। तो ये जो है याकूब अलैहिस्सलाम का सेकंड रिस्पॉन्स है। अब हम पोर्शन बाय पोर्शन इस आयत का जो है वो मुताला करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो इस आयत के अंदर आपने जब तर्जुमा सुना होगा तो 2 कंपोनेंट जो है बताए जा रहे हैं। नंबर 1 तो ये कि जो प्रेजेंट है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि तुम्हें ये जो ख्वाब दिखाया गया है तो तुम्हें चुन लिया गया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो मजीद बातों के जो मायने सीखना है वो सिखाएगा। बातों के मायने क्या होते हैं, बातों के क्या मतलब निकल रहे होते हैं, वो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन सिखा देगा। तो आगे ये चीज होने वाली है यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। लेकिन पास के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कोई नेमतें नहीं हुई हों। ऐसा नहीं है कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था कि एंशिएंट जो हैं जो खानदान है उनके अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम का कोई इतना रुझान ही नहीं था, वाकफियत ही नहीं थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम कौन होते हैं। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि नहीं, कमा अतम्महा अला अबवैका मिन कब्लु इब्राहीम व इसहाक, वो अपनी नेमतें तुम पर वैसे ही पूरी करेगा जिस तरह से तुम्हारे अजदाद जो हैं इब्राहिम और जो इसहाक हैं उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कर दी हैं। तो फ्यूचर के अंदर जो ब्लेसिंग जो नेमतें आने वाली हैं उनका जिक्र है, और जो पास्ट के अंदर जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुजार दी हैं उनका जिक्र किया गया है, इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। और ये बात भी एक, जिस तरह से पिछली वाली आयत के अंदर एक यूनिवर्सल कोट आया था, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, तो यहाँ पर भी एक यूनिवर्सल कोट आ रहा है, इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, यकीनन तुम्हारा रब जो है बहुत इल्म रखने वाला, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। तो स्टार्टिंग जो हमने की थी वो ये की थी कि जो इब्लीस जो है ना वो क्या इंटरजेक्ट करता है इंसानों के अंदर, होपलेसनेस, मायूसी पैदा कर देना चाहता है, क्योंकि खुद मायूस है तो बंदों के अंदर भी मायूसी पैदा करना चाहता है। वहां पर मैं एक बात बताना भूल गया कि कुरान के अंदर एक आयत ये भी आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। कितनी ही बड़ी गलती हो गई हो, कितने ही बड़ा गुनाह हो गए हो, इवन शिर्क भी हो गया हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तब भी अगर सच्चे दिल से उसकी तरफ पलट कर आए इंसान तो माफ कर देता है। ये तो इंसान की बदबख्ती है, ये तो इंसान की बदबख्ती है कि वो
اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے نہیں ہیں. اور انسان کی بدبختی کے انسان کو بدبخت کون بناتا ہے؟ شیطان وسوسے ڈال کر بدبخت بناتا ہے کہ انسان کا وہ خود اس سے غلطی ہوئی اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات بھی فٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے، اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، اس سے متعارف ہو ہی نہیں پاتا اور سمجھ لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی کی ذات بھی ویسی ہے جیسے میں دنیا میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ بھی جس طرح سے غلطیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین بھی جو ہے وہ غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا. اور وہ اسی کنفیوژن کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر نہیں آتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے اندر ہوپ جو ہے وہ انٹرجیکٹ کر رہے ہیں کہ تمہارا فیوچر بھی برائٹ ہے اور جو تمہاری لیگیسی ہے وہ بھی برائٹ. اور یہاں پر اب یہ جو آیت جو شروع ہوتی ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تو اللہ رب العالمین یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے کہ بھائی یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے نا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو دیکھ ہی رہے تھے کہ جو اوصاف یوسف علیہ السلام کے اندر موجود تھے نا، کہ جس طرح سے ان کے بڑے بھائی بچہ جو ہے وہ کن سے سیکھتا ہے؟ اپنے بڑے بھائیوں سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے سیکھتا ہے کہ میرے جو بڑے بچے ہیں نا ان کے اندر اخلاق کی کچھ خرابیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اس بچے نے یوسف نے ان کے اخلاقی برائیوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیا، بلکہ اس ماحول کے اندر بھی، گھر کے اندر ایسا ماحول ہے اس کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے رکھتا ہے. چیزوں بھائی جو ہیں اس کو اپنے آس پاس نہیں رکھتے، اس کو دور دور رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھے انداز کے اندر جا کر اپنے بھائیوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمیں آگے کی چیزیں پتہ ہی ہیں کہ وہ جو عزیز مصر تھا وہ صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے غلاموں کے بازار کے اندر کہ ایک بچہ ہے وہ اس کو بیچا جا رہا ہے اور جو لوگ ہیں اس کو بیچنے کے اوپر تیار ہیں کہ بیچا جا رہا ہے اس بچے کو. بس وہ جو عزیز مصر ہے اس بچے کو دیکھتا ہے کس طرح سے وہ کھڑا ہے، کس طرح سے چیزیں کر رہا ہے، اور خرید کے جب وہ بس اس سے اتنی ہی ملاقات یا اتنی ہی بات ہوئی ہے کہ وہ اسے لے کر گھر آیا ہے. اس راستے کے اندر ہی جس طرح سے وہ یوسف علیہ السلام کے کردار سے خوش ہوتا ہے یا متعارف ہوتا ہے، اور متعارف ہونے کے بعد جو پہلا انٹروڈکشن یا پہلا کمانڈ گھر آتے اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو تکریم کرے، اس کا جو آدر ستکار ہے وہ کیا جائے. اکرمی مسواہ، اس کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھنا ہے آپ نے. کون مالک جو ایک بہنا کے نام سے غلام کو خرید کے لایا ہے اس طرح سے آ کر کہتا ہے اپنے گھر والوں کو؟ تو ایک اتنے سے شارٹ اسپین کے اندر یوسف علیہ السلام کے کردار سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے ان کا مالک. تو سوچئے یعقوب علیہ السلام کو کتنا معلوم ہوگا اپنے بچے کے بارے میں. اور یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کی اولادوں کے اندر امامت رہے گی. تو اب یعقوب علیہ السلام بھی جس طرح سے آبزرو کر رہے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر بھی یہی ہے کہ میرے اور بچے تو کوالیفائی نہیں کرتے اس چیز کے لیے، یوسف کرتا ہے. تو اب وہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی نعمت ہے وہ یوسف علیہ السلام پر پوری کرے گا. تو یعقوب علیہ السلام جیسے ہی وہ بچہ اپنا خواب یعقوب علیہ السلام کو سناتا ہے تو پہلے ریئلٹی چیک دینے کے بعد دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تھا وہ، میں دیکھ رہا تھا اللہ رب العالمین کیسے تمہیں چنے گا، کس طرح سے نبوت کی بشارت تمہیں دے گا. اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تمہیں نبوت دینے کے لیے، نبوت سے سرفراز کرنے کے لیے. خواب کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہاری نبوت کا جو سلسلہ ہے یوسف تمہیں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. اور یہ جو خواب بھی جو ہے یوسف علیہ السلام ہی اس خواب کے معنی کو نہیں سمجھے بلکہ یعقوب علیہ السلام بھی تو سمجھے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ خواب کے اندر ایک آزمائش بھرا جو سفر ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دکھا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں آگے چلنے والی ہے، کس طرح سے جو معاملات ہیں وہ آگے چلنے والے ہیں. اور پھر یہ جو آگے جو بات کہی گئی وَكَذَلِكَ کے بعد یجتبیک ربک، کہ تمہارے رب نے تمہیں چوز کر لیا ہے. قرآن کے اندر جو 3 الفاظ ہیں جن کا بارہا ہمارے یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ چوز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر 3 الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور تینوں کی اپنی اپنی کیریکٹرسٹک ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو ہے وہ اختیار ہے، ایک استفاء ہے اور ایک اجتباء ہے. اختیار، استفاء، اجتباء. اختیار کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو. کیوں؟ اور اختیار کے معنی ہوتے ہیں کسی کی خیر دیکھ کر اسے چن لینا، کہ اس کے اندر گڈ موجود ہے، کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر اچھائی موجود ہے، اس اچھائی کی بنا کے اوپر تمہیں چن رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے
इस्तिवा वाला लफ्ज और इस्तिफा वाला भी लफ्ज शायद कुरान के अंदर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन स्पेसिफिकली एक जगह के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है अख्तर तुका, कि हमने तुम्हें चुन लिया। और हमने जो मूसा अलैहिस्सलाम के जो सेशन किए थे उसके अंदर ये बात भी आई थी, या इस आयत के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इख्तियार का लफ्ज मूसा अलैहिस्सलाम के लिए चुन रहा है? इसलिए चुन रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से भाग कर आए थे इजिप्ट से, तो उनके जहन के अंदर यही वाली बात थी कि एक बंदा मार दिया है मैंने, मेरे अंदर कोई खैर बाकी नहीं, छुपता छुपाता फिर रहा हूँ। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर वादी के अंदर बुलाकर उनके ऊपर नबूवत का ऐलान किया, उनसे कलाम किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहली ये बात कहता है कि नहीं मूसा, सेल्फ डाउट के अंदर मत जाओ, अपने आप को इतना कमतर मत समझो, तुम्हारी अंदर जो मौजूद अच्छाई है, जो खूबी है, उसे देखकर ही हमने तुम्हें इस मकसद के तहत चुना। वो वर्ड ही वो इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अंदाज ही वो इख्तियार करा कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में चलने वाली जो कश्मकश थी कि किस तरह से मुझे इस अजीम तरीन काम के ऊपर चुन लिया जाएगा, हालांकि मुझसे ये गलत काम हुआ है। और कयामत के दिन भी मूसा अलैहिस्सलाम को जो खटका लगा रहेगा, जब लोग उनकी तरफ मुतवज्जो होंगे शिफाअत के लिए, तो लोगों को वो जो जवाब देंगे ना, वो यही जवाब देंगे कि मैं कहाँ से तुम लोगों की सिफारिश करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर, मैं कहाँ से तुम्हारी आना के नाम से शफाअत करवाऊंगा, मेरे साथ मुझसे तो खुद से ये वाला मामला हुआ है, आज तो मुझे मेरी फिक्र है कि मेरे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करने वाला है, जाओ ईसा की तरफ जाओ। तो वो जो एक चीज मूसा अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर खटक रही थी, उस खटक को शैतान ने जो वार किया हुआ था उनके ऊपर, शैतान सब पर हमलावर होता है। तो जो जिस तरह से सेल्फ डाउट के अंदर घेरा हुआ था शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि कोई खैर बच्चे तेरे अंदर बाकी रहा नहीं है, अब तूने तो भाई बिना सोचे समझे एक बंदे को मार दिया है। और बनी इसराइल के अंदर तो कि वो बनी इसराइल के अंदर ही वो वाली आयत मौजूद है जो हम पढ़ते हैं सूरह माइदा के अंदर, कि जिसने बिला वजह एक नफ्स का कत्ल कर दिया, उसने तमाम इंसानियत का जो है वो कत्ल कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम और या मूसा अलैहिस्सलाम पूरी वहीं से हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये सारी बातें बताई कि इस तरह का बड़ा क्राइम मुझसे हुआ है। खुद इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर भी 3 बड़े गुनाह हैं, जिसके अंदर जो पहला जिक्र आता है वो शिर्क का आता है कि बंदा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को साझी ठहरा ले, या फिर किसी बहना के नाम से बेकसूर जान को कत्ल कर दे और जिना कर दे। शुरू से लेके अब तक यही अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बड़े तरीन गुनाह रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मूसा अलैहिस्सलाम को कि जो तुमने तौबा की थी वो हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है, और ये वर्ड इस्तेमाल करता है। खुद मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर से भी हमें ये सबक लेने को मिलता है, ये चीज सीखने को मिलती है कि आपसे कोई बड़ा गुनाह भी हो गया हो ना, और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो अल्लाह माफ कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे ही वो गलती होती है फौरन से वो, आप पूरा किस्सा सुनते हैं तो क्या आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये शैतान ने मुझे बरगला दिया और मुझसे एक बहुत बड़ा जो है वो गुनाह हो गया है, गलती हो गई है मुझसे। और वहीं से एक ये मुफस्सिरीन और जो उलमा है एक बात ये भी निकालते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तौबा कबूल कर ली है? फरिश्ते तो आकर आपको बताएंगे नहीं कि बच्चे जो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा मांगी थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया, पता कैसे चलेगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से उस स्टोरी को आगे लेकर चलता है, तो उलमा जो है ये बात कहते हैं कि आपसे कोई गलती गुनाह हुआ हो, आपको उसका एहसास भी हो गया हो, और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से तौबा कर ली हो, और फिर उसके फौरन बाद ऐसा हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की मुश्किल दूर करने के लिए आपको चुन रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है आपकी जो तौबा है वो कहीं ना कहीं कबूल कर ली। इस तरह के सिंबल होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपसे खैर के काम ले रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंद नहीं किया है आपसे खैर के काम लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मुसलसल खैर के काम लिए जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो तौबा है वो कबूल हो गई है। इस तरह के मुख्तलिफ, बाकी तो कल क़यामत के दिन ही सर्टेनली पता चलेगा कि किसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा कबूल करी, किसकी तौबा कबूल नहीं करी। लेकिन नाउम्मीद फिर नहीं होना है, वही वाली बात कि मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करके फिर जो है डाउट के अंदर नहीं गिर जाना कि अल्लाह ने तौबा कबूल की होगी या नहीं की हुई। तौबा मांग ली, अब आप उस चीज को जो है दुरुस्त करने के अंदर लग जाएं। तो एक लफ्ज जो है वो है इख्तियार, दूसरा है इस्तफा। इस्तफा जो लफ्ज है वो सफा से बना है, सफा के मायने होते हैं प्योरली सेल्फ चॉइस, कि बंदा जो है कोई चीज जो सेलेक्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद से कर रहा है, उसको वो पसंद है इसलिए उसने जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करता है कि जो फरिश्ते उन्होंने आसमानी हिदायत नुज़ुल करने के लिए चुने हैं,
اور زمین کے اوپر انسانوں میں سے جن لوگوں کو اپنا نبی بنا کر چنا ہے، اس چناؤ کے لیے جو اللہ رب العالمین لفظ استعمال کرتا ہے وہ صفا ہے، استفا ہے، کہ اللہ نے سیلف اپنی مرضی سے بندوں کو چن رہا ہے۔ تو کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں چنا، یا جبریل علیہ السلام کو ہی یہ وحی دینے والا فرشتہ کیوں نہیں بنایا، میکائیل علیہ السلام کو کیوں نہیں بنایا، یا پھر ایسے بھی ہو کہ یار اللہ رب العالمین نے شاید کچھ کوالٹی دیکھ کر ان کو چنا ہو، تو وہ کوالٹی میں میرے اندر ڈیولپ کر لوں، تپسیائیں کر لوں، یک کر لوں، کچھ کر لوں، تو پھر یہ ٹائٹل سے مجھے مل جائے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو رد ہے وہ یہ لفظ استفا کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین محض اپنی پسند سے جو ہے وہ چن لیتا ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی جس طرح سے کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے کہ بھائی آپ نے میرون کلر کی ٹی شرٹ کیوں پہنی ہے، بھائی مجھے پسند ہے اس لیے میں نے پہنی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی پسند ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چنا، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو چنا۔ اللہ رب العالمین کی خود کی اپنی مرضی شامل ہے اس کے اندر، کہ وہ جب اپنے بندوں کو چنتا ہے، یا فرشتوں میں سے جس فرشتے کو وہ اپنے کام کسی خاص کام کے لیے چنتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی لوجک یا پھر اسٹڈی کرنا بیجا ہے کہ انہی کو کیوں چنا، ٹھیک ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے ایک نٹ شیل کے اندر یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اس سے یہ اس بات کی بھی نفی نہیں ہوتی کہ ان کے اندر خود کے اندر کوئی جو ہے کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ استفا استعمال کرتا ہے تو لفظ اجتبا بھی کرتا ہے، اور جو لفظ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے، یجتبی کا، اجتبا آیا۔ اجتبا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اینشنٹ عرب کے اندر یا عربک جو لٹریچر ہے اس کے اندر اس لفظ کے معنی اس طرح سے آتے ہیں کہ جبو سے یہ لفظ بنا ہے، اور جبو کہتے تھے کہ جو لوگ ایک جیسے ہمارے یہاں پر اکنومیکل لیول کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مختلف کلاسز ہیں، لوور کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے، تو اسی طرح سے وہ لوگ جن کے پاس اتنے ایسیٹس ہوں جو ٹیکس دینے کے لیے کوالیفائی کرتے ہوں، اس پروسیس کو جبو کہا جاتا ہے، کہ جو لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنا اماؤنٹ یا اتنا مال و دولت ہے کہ وہ گورنمنٹ کو جو ہے ٹیکس دے سکتے، اس سے کم جو ہے وہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو کوالیفائی کرنا کسی چیز کے لیے، اس آئیڈیا کو جو ہے وہ جو جبو ہے یا جو اجتبا ہے وہ ڈلیور کرتا ہے، کہ یہ سلیکشن اس بنا کا اوپر ہوتا ہے کہ سامنے والے کے اندر کتنی کوالٹیز، اس کی کوالٹی دیکھ کر اسے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر ہمارے یہاں پر کہ جیسے مختلف طرح کے جو گیٹوں کے اندر پیچ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ اسکرو ڈرائیور لیں گے تو ایک اسپیشل شیپ کا اسکرو ڈرائیور سے ہی وہ پیچ کھلے گا، ہر اسکرو ڈرائیور جو ہے وہ اس سے وہ پیچ نہیں کھلے گا۔ تو یہ جو آپ سلیکشن کر رہے ہیں، جو اٹیچی آپ کے پاس ہے جس کے اندر سے آپ اسپیسیفک ٹائپ کا اسکرو ڈرائیور نکال رہے ہیں دوسروں کو چھوڑ کر، تو اسے اجتبا، اس پروسیس کو اجتبا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو یہاں پر کہہ رہا ہے یجتبی کا ربو کا، اللہ رب العالمین کے یعقوب علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ اس طرح سے تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، جو ٹیلنٹ، جو کیریکٹر، جو عادتیں تمہارے اندر اللہ رب العالمین نے دیکھی ہے نا، ان عادتوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے وہ چن لیا ہے اس مقصد کے لیے، کہ میری ساری بچوں کے اندر سے تمہیں اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ اور اس چننے کے اندر بھی یہ جو لفظ اجتبائی آتا ہے، آگے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، سورہ السجدہ کی جو آخری آیات ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَهُوَ اجْتَبَاكُمْ، تو وہ جو یہاں پر تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام ہے، اس لیے ان کو چنا جا رہا ہے ان کی کریکٹرسٹک دیکھ کے، ہم سب تو عام آدمی ہیں، ہمارے ساتھ اس کا کیا ہے؟ تو جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے نا، تب اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہاں پر بھی۔ لیکن ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو والد اپنے بچے سے یہ بات کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواب میں جو دکھایا گیا ہے نا کہ اس طرح کا ایک کنفلکٹ آنے والا، اس طرح کی آزمائش آنے والی ہے، اللہ رب العالمین یوسف تمہارے اندر یہ پوٹینشیل دیکھ رہا ہے کہ تم یہ جرنی طے کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انڈیویجول کا کی لائف جو ہے وہ پلان کی ہوئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے مزداق کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ کہ میری زندگی کے اندر جتنے ٹرائلز آنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے میری کیپیسٹی دیکھ کر ہی مجھے وہ ٹرائلز دیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو بھی مسئلے مسائل آنے والے ہیں، ابھی یہ آخری ٹائم ہے جب وہ اپنے والد سے خطاب کر رہے ہیں، اس کے بعد بہت ایک طویل عرصے بعد وہ اپنے والد سے ملیں گے، تو اور اس بیچ کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، ان کا بھائیوں کا ان کے خلاف ان کو قتل کرنے کی سازش کرنا، پھر ان کے کنویں کے اندر پھینک دینا، پھر
जो कुएं से निकाल कर जिन लोगों ने उसे निकाला है, एक प्यारे से बच्चे के ऊपर रहम बिल्कुल भी ना खाना, वो बिना शर्ट का बच्चा है और उसको जल्दीबाजी के अंदर बेच देना। फिर एक ऐसे माहौल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जाना कि एक बंदा मिला जो उनकी कदर करने वाला है, लेकिन फिर उसकी बीवी जो है वो उनके खिलाफ प्लॉट कर रही है। बंदा जो है फिर वो चला जा रहा है जेल के अंदर, जेल के अंदर वो लोग लोगों का भला कर रहा है, वो लोग बाहर निकल कर भूल जा रहे हैं, फिर जब जरूरत पड़ रही है तो अपने काम निकलवाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी जो ट्रायल्स और हार्डशिप जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखनी है ना, तो याकूब अलैहिस्सलाम अभी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे रब ने जो है वो तुम्हें चुन लिया है बच्चे। ये जो प्रॉफिटहुड है ना, ये आता ही ट्रायल के साथ। इसको हम मॉडर्न इस्तिलाह के अंदर समझ लें कि जो मोस्ट पेइंग जॉब्स है ना, वो मोस्ट टफेस्ट जॉब है। जिन जॉब्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा पे किया जाता है ना, वो जॉब है जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आपको एक कमरे साफ करने के 1 लाख रुपए महीना कोई नहीं देने वाला। तो जितनी चैलेंजिंग जॉब होगी, जितने हार्ड ट्रायल होंगे, उतना ज्यादा आपको अजर मिलेगा। तो यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के अंदर ये बात इंस्टिल कर रहे हैं कि तुम्हारी सलाहियतें देखकर, तुम्हारा सब्र देखकर, तुम्हारी एनालिटिकल पावर को देखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो तुम्हें चुन लिया है। और इस तरह से जो है ये जो नबूवत की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दे रहा है। लेकिन अब कभी कभार क्या होता है, अब बच्चे को क्या बात बताई जा रही है कि मेरे 11 भाई जो हैं वो तो गलत ही प्लान करने वाले हैं, वो गलत ही हरकतें करेंगे, अल्लाह ने तो मुझे चुन लिया। और ये इज्तबा और बोल दिया, मेरे अंदर मेरी क्वालिटी देखकर चुना है। आजकल के बच्चे को ये बात कह दी जाए जिसके अंदर टैलेंट हो, ओ हो कि सारे भाइयों में तुम हो भयंकर, तो फिर अब वो भाई वो जो आसमान के ऊपर चढ़ेगा वो जमीन की तरफ नहीं देखेगा। जो कहीं ना कहीं तकब्बुराना मिजाज उसके अंदर पैदा होगा, वो हम देखते ही हैं, हमारी आंखों के सामने है। जितने भी जो एथलीट्स हैं, जो कम उम्र के अंदर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन टैलेंट से नवाजा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से वो उस मकाम के ऊपर भी पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत फेम उनको मिलता है, तो किस तरह की जिंदगी वो जीते हैं वो सब हम सबके सामने है। जिन लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन टैलेंट से नवाजता है और उनके टैलेंट की दुनिया ने कदर कर ली है, फिर उसके बाद जो वो जिंदगी जीते हैं, तो वो बहुत कम है जो अखलाकी अकदार बाकी रख पाते हैं। बल्कि बाकी अक्सर जितने भी होते हैं, जितने भी आप सिंगर्स देख लीजिए, जितने भी आप एथलीट्स देख लीजिए या एक्टर्स देख लीजिए, जिस तरह के रवैया, जिस तरह के स्कैंडल्स उनके यहाँ पर होते हैं, जिस तरह का लाइफ स्टाइल वो जीते हैं, वो हम सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर क्या बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याकूब अलैहिस्सलाम के जरिए से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहलवाई है कि भाई यश तभी का रब्बू का, तुम्हारे रब ने तुम्हें चुना। और रब जैसे ही आता है तो रब का अपोजिट क्या है, रब जैसे रिलेशन हम कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है, तो हम उसके क्या हैं, अब्द हैं। और जो मोस्ट ह्यूमिलिएटिव पोस्ट जो कोई हो सकती है वो अब्द की पोस्ट है। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के जहन के अंदर ये बात डाल दे रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर से, इतराना नहीं, तकब्बुर वाली जिंदगी नहीं जीनी है। ये जितने भी टैलेंट, जितनी भी सलाहियतें मिली है ना तुम्हें, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, तुम्हारे जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा रब है, जो तुम्हारा परवरिश करने वाला है, जो तुम्हारा ख्याल रखने वाला है, जो तुम्हारी तरबियत करने वाला है, तुम्हारा रब जो है उसके है ये। और उसके एहसानात हैं ये सारे के सारे। टैलेंट होना ये बड़ी बात नहीं है, उस टैलेंट को यूटिलाइज कर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना ये बड़ी बात है। ये उस बच्चे को याकूब अलैहिस्सलाम इनिशियल स्टेज के अंदर बातें सिखा रहे हैं। और ये जो बच्चा है ना, अपनी जिंदगी के आखिरी मकाम तक ये बातें याद रखने वाला, कभी भी तकब्बुराना रवैया तो छोड़िए, डाउन टू अर्थ ही मिलेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। जब पूरी पोजीशन के अंदर है और भाई सामने से कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बिन्यामीन ने चोरी करी है, इसका भाई यूसुफ भी चोर था। या यूसुफ अलैहिस्सलाम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर है और उनके सामने ये कहा जा रहा है कि तो चोर था यूसुफ, तो उसके बावजूद भी वो जो है गलत जो है इकदाम नहीं करते हैं। ये कह लीजिए कि खून का घूंट जो है, गुस्से का घूंट जो है वो पी जाते हैं, कोई अना के नाम से उनके खिलाफ चीजें नहीं करती। और जब करने की बात भी आती है, उनसे बदला लेने की बात भी आती है, तो कह देते हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, तुम्हारे ऊपर आज कोई सख्ती नहीं की जाएगी, जाओ माफ किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तमाम जो चीजें तुमने मेरे साथ करी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने माफ किया। तो टैलेंट को यूटिलाइज करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो ये जो रसूल है अपने बच्चे को ये बात सिखा रहे हैं कि ये जो
صفات, یہ جو صلاحیتیں جو تمہیں دی گئی ہیں, اس کی جواب دہی تمہیں اللہ رب العالمین کے یہاں پر دینی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور جس کو اللہ رب العالمین نے ٹیلنٹ دے دیا اس کے اوپر تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی. جس کو اللہ رب العالمین نے چن لیا اس کے اوپر تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی کہ اب مجھے اس صلاحیت کا جواب اللہ رب العالمین کو دینا ہے. یہ یعقوب علیہ السلام جو باتیں یوسف علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں نا, کہ وہ آخر کے اندر کہ مجھے ہے نا میرے بھائی قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں, میرے ساتھ یہ ساری کی ساری عورتیں الزام لگا رہی ہیں, یہ ہو رہے ہیں. تو یعقوب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, بلکہ تھرو آؤٹ دا لائف ان کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ یہ جو ساری کی ساری چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے نا, ایک میجر پلان کا حصہ ہے. میں ہل نہیں سکتا. میں یہ ہنا کے نام سے وجاہت دے کر کہ بھائی میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا تھا اس لیے میں نے غلط کام کر دیا. وہ ساری عورتیں جو ہیں مجھے ہے نا اس بات کے اوپر آمادہ کر رہی تھی کہ غلط کام کر لو, ورنہ مجھے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا, کیا پتا مجھے قتل کر دیا جاتا. اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی یوسف علیہ السلام, کیونکہ وہ جو لارج پرپز ہے وہ آنکھوں کے سامنے کے اندر ہے کہ نہیں, خدا تعالیٰ کو مجھے جواب دہی دینی ہے. ہر جس جگہ پر بھی میں موجود ہوں, جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس بات کا رونا نہیں پیٹ سکتا کہ میرے ساتھ تو غلط ہوا تھا, میرے ساتھ تو زندگی نے لوگوں نے غلط ہی غلط کیا ہے. میں اس کا رونا رو کے اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میرے پاس یہ معاملہ نہیں ہے کہ میرے بھائی غلط تھے تو پھر میں بھی ان کے ساتھ غلط کرنے کے اوپر آزادی, چھٹی مجھے مل گئی. عورت میرے ساتھ غلط کر رہی تھی تو میں بھی غلط کرنے کی مجھے چھٹی مل گئی. ان قیدیوں نے میرے ساتھ غلط کیا, یا بادشاہ جو ہے اپنے کام کے لیے مجھے یوٹیلائز کر رہا تھا. اب ہے نا مجھے تو خواب میں سمجھ میں آ رہا ہے اس تمام, کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا کہ نیگیٹو سائیکولوجی ہو جاتی ہے اس طرح کے بندوں کی. یوسف علیہ السلام یہ بھی تو کر سکتے تھے, خواب کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ 7 سال جو ہیں وہ بڑی فراغت والے ہیں, بہت اچھے ہونے والے ہیں, اور 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی ہوگی. تو اس طرح کا فرسٹریٹ بندہ وہ کیا کرے, مرو, ساری انسانیت نے مجھے پریشان ہی کرا ہے, اب تم بھی پریشان ہو. جسٹیفائی ہے وہ تو, میں نے بھی سارا غم ہی غم دیکھا, اب تم دیکھو تو اب تمہیں پتہ چلے گا کس طرح سے جو ہے کیا نام سے درد بھری زندگی کس طرح کی ہوتی. جو موویز وغیرہ کے اندر دکھایا جاتا ہے, جب بندہ ولن بنتا ہے, جو پوزیٹیولی زندگی گزار رہا تھا, تو ریزن کیا دے رہا ہوتا ہے وہ, کہ کوئی ولن ہوتا نہیں ہے, کوئی برا آدمی ہوتا نہیں ہے, دنیا جو ہے اسے برا بنا دیتی ہے. یا یوسف علیہ السلام جو ہے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ سارا غلط اور سارا جو برا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے. اتنی برا ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے اس چیز کو نہیں ختم کرتے ہیں. آج تو آئی کے ٹی تو شروع کر, تو کہاں تھے ہم؟ انبیاء علیہ السلام کس کی نفی کرتے ہیں کہ جو نیگیٹو ایکسپیرینس انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جیے ہیں اس کو وہ اس چیز کا حوالہ نہیں بناتے کہ ہم بھی غلط کام کر لیں. نہیں, کچھ بھی ہو رہا ہو میں حق سے نہیں ہٹ سکتا. یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ 2 الفاظ کہہ کر وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچے کے اندر انسٹل کر دے رہے ہیں. اتنے جامع جو ہیں وہ یہ الفاظ ہے. اور جو بات میں بتا رہا تھا کہ جب بندے کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مجھے تو وہ اتنی ساری صفتیں اور صلاحیتیں نوازی اور آگے ایک برائٹ فیوچر جو ہے اور ایک برائٹ پوزیشن جو ہے, اللہ کا نبی بن جانا, اس سے بڑی پوزیشن کیا ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بندے کے اندر جو ہیں کہیں تکبرانہ چیزیں پیدا نہ کر دے, کیونکہ والد ہیں. اللہ رب العالمین کو تو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام میں کبھی بھی یہ نہیں ہونے والا, لیکن والد کا سکھانے کا کام ہے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد کو تو ربکا کہتے ہیں کہ تو آپ کے رب نے آپ کو چنا ہے. یوسف ہمیشہ یہ بات دھیان رکھنا, جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, جن جن آزمائشوں سے تمہیں گزارا جا رہا ہے, یا جو صلاحیتیں اللہ رب العالمین جو ہے تمہیں آگے دے گا, وہ سب جو ہے وہ تمہارا رب تمہیں دے گا. وہ تمہارا رب ہے, تم اس کے بندے ہو. اس کی دی ہوئی ہر چیز ایک امانت ہے. اس کی طرف سے جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں وہ ایک اپرچونٹی ہے, اس کے اندر تمہیں فیضیاب ہو کر نکلنا ہے, اس کے اندر کامیاب ہو کر تم نے نکلنا ہے. یوسف یہ ہے ساری کی ساری زندگی کا مقصد. تم نے ہلنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو پروفٹ ہوڈ کی نعمت سے تمہیں نواز رہا ہے نا, اس کو حتی الامکان تم نے پورا کرنا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین آگے یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور جو اللہ رب العالمین ہے جس طرح سے تم نے یہ جو خواب بتایا ہے نا,
कुछ चीजें हैं जो अभी तुम्हें पता नहीं, कुछ तो तुम्हें पता है, जिस तरह से तुमने ख्वाब बताया है ना, जो एनालिसिस तुमने किया है, इससे मुझे समझ में आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें चीजों का सिखाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये शुरुआत है। तर्जुमा क्या हमने इसका पढ़ा था कि वह तुम्हें बातों के मायने जो हैं वो सिखा रहा है और आगे भी सिखाएगा। और तावील अहादीस हम अक्सर कुरान के अंदर सूरह यूसुफ को का जब मुताला कर रहे होते हैं ना, तो ये तावील अहादीस का मतलब ये समझ रहे होते हैं कि ख्वाब की ताबीर करना जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाएंगे, ये एक स्पेशल स्किल देखें। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर तावील अहलाम नहीं कहा है कि ख्वाब ख्वाब का मतलब समझना या तावील कर देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन या ख्वाब की ताबीर जो है वो सिखाएगा। नहीं, तावील अहादीस, जो बातें होंगी मुख्तलिफ तरह की, वो क्यों कही जा रही है, उनका पीछे मकसद क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, ये चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सिखाएगा। हदसा जो है अरबी जबान के अंदर, हदीस भी आप सुनते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें होती हैं, तो हदसा जो है इंसिडेंट को भी कहते हैं, इवेंट को भी कहते हैं, कि मुख्तलिफ इवेंट्स तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएंगे और उनसे क्या उनसे सीख लेने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बताएगा। मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू, मुख्तलिफ तरह के लोगों के अंदर तुम्हें भेजा जाएगा। हदस के एक मायने न्यू के भी होते हैं, और आप जो जुम्मे के खितबे के अंदर खैरुल हदीस बिदअ, तो वो जो नई नई जो चीजें दीन के अंदर दाखिल की जाती है, उसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो ये हदस का ही होता है, कि नई नई चीजें। यूसुफ तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस तरह, ये जो ख्वाब तुम्हें दिखाया गया है ना कि अल्टीमेटली तुम्हारे भाई तुम्हारे आगे और हम सब तुम्हारे आगे आजिज हो जाएंगे, तो मुख्तलिफ लोगों से, नए नए लोगों से तुम्हें मिलाया जाएगा, और वो जो जिस तरह की वो बातें करेंगे, उन बातों के क्या मायने होते हैं, उनके पीछे क्या इंटेंशन छुपा हुआ है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सिखाएगा। हदस के मायने तो ये हो गए कि नई नई चीजें, नए नए इवेंट, और हादसा मतलब कैटास्ट्रोफी, कोई मुश्किलात भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएगी, उनसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बहुत सी चीजें जो है वो सिखाएगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हादसा से भरी हुई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उनके साथ। और तावील के मायने और की तावील के जो मायने होते हैं वो ये कि बात के पीछे का मफहूम देखना। जैसे एक पेड़ है, तो इंसान की नजर सिर्फ उस पेड़ के ऊपर ना हो, जाहिर के ऊपर ना हो, बल्कि जो उसकी रूट है, जो उसकी बुनियाद है, उसके ऊपर भी हो। बातें जो कही जा रही है अल्फाजों के अंदर पिरोकर, सिर्फ बंदा वो सुनी ना हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, किस नियत के साथ की जा रही है, उसे समझना, इसे तावील कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस तरह के मामला जो है वो सिखाएगा। तुम मिनिस्टर के घर के अंदर जाओगे, वहां पर तुम्हें पॉलिटिशियन किस तरह से बात करते हैं, उनकी प्राइवेट टॉक्स कैसे होती है, उनकी पब्लिक टॉक कैसे होती है, ये तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन सिखाएगा। फिर तुम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे उन्हें गुलाम बनाया हुआ है, तो गुलाम अपनी जिंदगी किस तरह से जीते हैं, और एक स्पेशल गुलाम की जिंदगी कैसी है, आम गुलामों की जिंदगी कैसी है, उन लोगों की जिंदगी से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो तुम्हें मुतारिफ करवाएगा। फिर जेल में बैठ के कैदी किस तरह की जिंदगी जीते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मुतारिफ कराएगा। तो मुख्तलिफ मरहलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन या मुख्तलिफ माहौलों के अंदर तुम्हें डालकर चीजें सिखाएगा, और तुम्हें जो अल्टीमेट एक पर्पस जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे लेना है, लोगों की हिदायत करना और इंसानियत का बचाव, वो अल्टीमेटली अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे लेता रहेगा। तो जिंदगी के अंदर जो कुछ हो रहा हो, जो कुछ हो रहा हो, जितनी भी आजमाइश, जितनी भी ट्रायल्स आ रहे हो, उससे नाउम्मीद कभी ना होना। ये सारी की सारी जो है वो ग्रेट जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान है, जो प्रॉफिटहुड की नेमत से तुम्हें जो नवाजा है, उसी का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलसल तुम्हें जो है अभी भी चीजें सिखा रहा है, और आगे भी जो है मुसलसल तुम्हें चीजें सिखाता रहेगा। वही युतिम्मु नियमतहु अलैका, और तुम पर अपनी नेमत का जो है वो इत्माम कर देगा, कंप्लीट कर देगा अपनी नेमत। तो नेमत जो है कुरान के अंदर मुफस्सिरीन ने अलग अलग तरीके से इसको समझाया है, लेकिन मोटे तौर के ऊपर दो तरह की नेमत होती है। एक तो ये जो है स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी नेमत है, जिसके अंदर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के ऊपर यकीन है। ठीक है, तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर देगा, और ना केवल यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये जुमला कहा गया है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात कही गई है, जो हम सूरह माइदा के अंदर कहते हैं ना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व युतिम्मु निअमतहु। वहां पर भी ये वाली बात है कि अल्लाह ने अपनी नेमत का जो है वो इत्माम कर दिया है मुसलमानों के ऊपर, जब दीन को जो है मुकम्मल कर दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुख्तलिफ जगह के ऊपर भी बात आई है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सारी जो बातें आई हैं वो मदीना के दौर के अंदर आई है। तो ये जो ब्लेसिंग जो नेमत है ना, इसको मुफस्सिरीन दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो रूहानी नेमत है और एक दुनियावी नेमत। तो रूहानी नेमतों के अंदर क्या शामिल है कि बंदे का जो ईमान और अल्लाह पर जो यकीन और डिटर्मिनेशन है ना, वो शेक नहीं हो। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की वो ये नेमत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे के रखता है
کہ उनका ईमान कभी भी मुतजलजल नहीं होता, अल्लाह के नेक बंदों का ईमान जो है मुतजलजल नहीं होता। खैर अंबिया अलैहिस्सलाम का तो ईमान को हम कंपेयर पैमाना लगाकर चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो आम आदमी है उनका ईमान जो है वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अल्लाह का नेमत जिस बंदे के ऊपर होती है तो ईमान जो है वो उसका चमकता हुआ ही रहता है, उसके अंदर जो है उसका दिल जो है ईमान से खाली नहीं होता। दूसरी जो चीज है जिसका यहाँ पे जिक्र किया जाए कि किस नेमत का इत्माम करने की बात की जा रही है कि यूसुफ जो ट्रायल तुम्हें दिए जाएंगे ना, जिन मरहलों से तुम्हें गुजारा जाएगा, अल्टीमेटली अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मुकाम के ऊपर तुम्हें पहुंचा देगा कि वहां पर तुम्हारे फेथ को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। अभी जब कुएं की अंधेरे के अंदर है तो फेथ तो चैलेंज हो रहा है ना। अभी जब औरत जो है बदकारी के ऊपर बुला रही है, फेथ तो चेंज हो रहा है ना, चैलेंज हो रहा है ना। जब जेल के अंदर है, गलत ही गलत हो रहा है, इस तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, वो भी बेकसूर आदमी जेल के अंदर है, तो फेथ तो चैलेंज हो रहा है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन अल्टीमेटली जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर जो है अपनी नेमत का जो है वो इत्माम कर देगा, तुम पर करेगा, वयुतिम्मु निअमतहु व अली याकूब, और याकूब की औलादों पर भी करेगा। खुद का जिक्र नहीं करा बल्कि खुद का भी नाम लिया याकूब अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे मेरी जो याकूब की जो औलादे हैं उनके ऊपर भी जो नेमतें हैं वो इत्माम कर देगा। यानी कि एट लास्ट ये जो 11 भाई हैं, जस्ट अपोजिट है अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी कंडीशन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने की जो आगे जिंदगी आने वाली है, उनका जो वर्ल्डली ब्लेसिंग जो है ना, दुनियावी जो नेमतें हैं, वो कोई नहीं मिलने वाली यूसुफ अलैहिस्सलाम को। उनके भाइयों को वो सारी नेमतें मिल रही हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास क्या नेमत है? ईमान की नेमत है, रूहानी नेमत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है, और उनके भाइयों के पास ईमान की नेमत जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है। लेकिन ये जो बात याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ऐसा होगा कि ये जो ईमान की जो नेमत है इन बच्चों को भी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा, और फिर आगे इनकी औलादों के अंदर से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम निकालेगा। कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक, वो उसी तरह से तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमतें पूरी करेगा जिस तरह से उसने अपनी नेमतें पूरी करी थी तुम्हारे दो अजदाद पर, पहले इब्राहिम और इसहाक। जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतें जो है वो पूरी की थी, उसी तरह से जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर भी नेमतें पूरी करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लेगेसी क्या लेगेसी है? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने डिटरमिनेट क्यों है, और ये याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लेगेसी क्या है? क्या बता रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम की? कहाँ से आए हो तुम? ओरिजिन क्या है तुम्हारा? किस रेस से बिलोंग करते हो? तुम्हारे अजदाद है कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरी कौम मेरे मुखालिफ हो जाए, मेरा बाप मेरे मुखालिफ हो जाए, लोग मुझे जला मारे, मेरा रब जो है वो मुझसे मेरी प्यारी चीज मेरे बच्चे की कुर्बानी मांग ले, मैं सब करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा जो यकीन है मेरे रब के ऊपर वो शेक नहीं होगा, किसी भी कंडीशन के अंदर मैं होकर गुजर जाऊं। इसलिए जिक्र इब्राहिम यहाँ पर आ रहा है। इसहाक अलैहिस्सलाम कब दिए गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? बहुत बाद के अंदर, जब तमाम तरह की टेस्ट जो है उनसे उनको गुजार लिया गया। पहले एक आसानी जो नरमी जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर दी गई, फिर उसके बाद जो है इसहाक अलैहिस्सलाम दिए गए, और फिर वो टाइटल दिया गया कि अब इब्राहिम हम तुम्हें अना के नाम से इमाम बनाते हैं, और फिर वो जो सारा का सारा सिलसिला है। तो लेगेसी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो यही तो बयान कर रही है कि कुछ भी हो जाए अपने फेथ को लेकर बज नहीं होना है, हिलना नहीं है, किस तरह के हालात आ जाएं मैं अपने फेथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं कि सोहेल भाई यार ये तो नबियों का खानदान है, ये तो होंगे ही, जैसे ऐसा कहा जाता है ना शूरवीरों के खानदान में तो शूरवीर ही होते हैं, हमारा क्या ताल्लुक इनसे? ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम इतने बड़े बड़े लोग हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारा क्या मतलब? तो जो मैं स्टार्टिंग के अंदर आपको कह रहा था ना कि जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वह कज़ालिका यश्तबीका, सेम यही वर्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल करता है सूरह अस-सजदा के अंदर और जिक्र करता है हमसे, और यही बात कहता है वो हुवज्तबाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें चुन लिया है, और दीन के मामले में तुम्हारे दीन के मामले में कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंगी नहीं रखी है। मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, और तुम अपने बाप इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को गाइडेंस याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ तो याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तुम्हारा ताल्लुक इसहाक और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, लेकिन वहां पर याकूब अलैहिस्सलाम हमसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बराह रास्त खुद कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम में से हर एक को चुन लिया है अपने काम के लिए, और जो तुम्हारा ताल्लुक है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ है। तो
तुम्हारा भी जो फेथ है किसी हाल के अंदर बज नहीं होना चाहिए। जिस तरह की आजमाइश है, जिस तरह की चीज, जिस तरह की जिंदगी, यूसुफ, इस तरह से कनेक्शन बनता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर उनके वालिद समझा रहे हैं, और कुरान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि तुम भी इब्राहिम की ही औलाद हो। स्पिरिचुअल फादर जो है, बायोलॉजिकल फादर तुम्हारे होंगे, जो तुम अपना, जिनका लास्ट नाम तुम अपने नाम के साथ लगाते हो, लेकिन जो तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी जो स्पिरिचुअल फादर है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो स्पिरिचुअल फादर है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ये कॉमन जो ये जो इस तरह से कीजिए, जो ये लिनियज है ना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो हम सबको एक लाकर खड़ा कर देते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम में से हर एक की क्वालिटी देखकर मैंने तुम्हें चुना है। 2023 2024 जब फिलिस्तीन के अंदर और इस तरह के मसले हो रहे हैं और मुसलमान के ईमान को चैलेंज किया जा रहा है, तो हमने तुम्हें इस जनरेशन के अंदर भेजा ही इसलिए है कि तुम इस्लाम के जो है अलमबरदार बन सको। जो पॉजिटिविटी जो है बार बार हमारे अंदर इंस्टिल होनी चाहिए उस आयत को पढ़ के, ये कि इस तरह के मुश्किल हालात के अंदर ही इस्लाम का परचम कोई लहरा सकते थे तो वो हम हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि वाई मी वाई मी वाई मी, मेरे साथ इस तरह से क्यों हो रहा है, इस तरह की आजमाइशें मुझे क्यों दी जा रही है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको जिस तरह से अपब्रिंगिंग करी है और जिस तरह से बात समझा रहे हैं वो ये कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपना कुर्ब किसी को नवाजता है तो आजमाइश ही आजमाइशें हैं। ये जिंदगी जो है वो सख्त से सख्त ही होने वाली है। तो हमें भी ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से कि कोई मुसलमान होना ना उस दौर के अंदर, ना इस दौर के अंदर, ना आने वाले दौर के अंदर कभी भी आसान नहीं होने वाला है। हमेशा शैतान पीछे लगा रहेगा, हमेशा आजमाइशें लगी रहेंगी, हमेशा फेथ चैलेंज करने वाली जो ताकतें हैं वो मौजूद रहेंगी, लेकिन हमने हर हाल के अंदर अपने फेथ से हिलना नहीं है। वो फिलिस्तीन के अंदर रहने वाला बच्चा जो अपने माँ बाप को खो चुका, उसका घर उसके सामने टूट चुका, और वहां पूछे जाने पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपनी जबान से वो निकाल रहा है, तो फिर हम खुदा के आगे कैसा कहेंगे। ये यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, या फिर हम तो इस दौर के अंदर जी रहे हैं कि अबू बकर या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसालें हमें हमारे सामने मौजूद नहीं है। ये लोग सिर्फ बातों के अंदर कर रहे हो, हमारे सामने ईमान की अमली मिसालें लोग पेश कर रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, जो चीजें जिस तरह से आ रही है, हमारे सामने सारी की सारी चीजें दिख रही हैं। बड़े बड़े जिन लोगों ने अपने कारोबार बना रखे हैं वो टूट जाने के बाद बच्चा अपने वालिदैन खो दे रहा है। एक वालिद, उसकी बीवी चली गई, उसके बच्चे चले गए, पूरा बर्बाद हो गया। वो गया था घर से निकलकर अपने बच्चों के लिए ब्रेड दूध लेने, आता है तो वो बच्चे, ना घर है ना बच्चे ना बीवी है, कोई नहीं है। और जब उससे पूछा जा रहा है, आराम से अल्हम्दुलिल्लाह के दे रहा है, वो अल्लाह के आगे सजदाए शुक्र करता है। तो वो कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे नमाजें पढ़ने से? क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम, ये शैतान है और नफ्स ने जो खन्नास हमारे दिमागों के अंदर और जो आलस हमारे अंदर भर दिया है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। इस आलस भरी जिंदगी से हमें निकालना है। ये जो पर्पस, जिस पर्पस के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में भेजा था, वो पर्पस जिस तरह से ब्लर हो गया है ना, और जो एक काम चोरी और एक निकम्मापन और एक आलसीपना हमारे अंदर आ गया है, उस वजह से हम ये बेढंगी और गैर अखलाकी जिंदगी जी रहे हैं। हमें अपनी अकदार पहचानने की जरूरत है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमने जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है हमें कि किस लिनियज से तुम्हारा ताल्लुक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो तुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम कायनात का निजाम तुम्हारी वजह से चला रहा है। जो शहादत अलन नास की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको दी हुई है, और हम मस्ती में रील्स के एडिक्ट हुए हैं। इस वो जो पर्पस था वो पूरी तरह से भुलाकर शैतान चाहता है कि हम अपना पर्पस भूल जाएं और दूसरी ये जो गैर मुनासिब चीजें उसके अंदर फंस रहकर अपनी जिंदगी गुजार दे। और जब कल कयामत अचानक से आ धमके तो फिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कहते फिर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ी मुद्दत और देते, मैं अभी अच्छे काम करके आता हूं। भाई 60 साल दे दिए, 70 साल दे दिए, वहां पर फिर यही होगा कि अब कोई मोहलत नहीं देने वाली, वो मोहलत तुम गवा चुके। वो जो तुमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फिजूलियात के अंदर गुजार दिया, टाइम गया, बात खत्म। तुम्हारे पास भी उतना टाइम था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी उतना टाइम था, सबके पास उतना टाइम था, और टैलेंट बेहतरीन हमने तुम्हें दिया था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया वज तबाकुम, तो टैलेंट देखकर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमने चुना है। कभी भी सेल्फ डाउट के अंदर भी नहीं जाना चाहिए हमने कि लोग कह रहे हैं फैजान भाई को या सोहेल भाई को, अरे यार क्या है, कुछ भी नहीं आता।
अरे भाई नहीं, हुआ तबाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि कुछ ना कुछ तो है, जब भी तो उसने मुझे चुना है, पैदा करा है, यहाँ पर मैं सांस ले रहा हूँ, कोई किसी मकसद के साथ मुझे मिला है, तो हमें अपना मकसद समझकर मुसलसल उसके अंदर जो है गामजन रहना है। आखिर के अंदर जो यूनिवर्सल बात याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से, या फिर उसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बीच में एक बात कह रहे हैं, इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, यकीनन आपका रब। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि सालों साल पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को कहा हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा हो कि आपका रब अलीम और हकीम है, और यहाँ पर इस आयत के जरिए कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हम सबसे, इन्ना का रब इन्ना रब्बा का, यकीनन आप सबका रब अलीम और हकीम है। जो कुछ जिम्मेदारियां, जो कुछ चैलेंजेस, जो कुछ ट्रायल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जिंदगी के अंदर लिखे हैं ना, उन सब ट्रायल्स के अंदर आप कामयाब होने का पोटेंशियल रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन तमाम अपॉर्चुनिटीज का जो है फायदा उठाने वाला बनाए, और जो सफर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें लिखा है, अल्लाह जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कामयाब के साथ इस सफर को तय करेंगे, हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमारे इस जिंदगी के सफर को कामयाबी के साथ तय करने वाला बनाए, और कल कयामत के दिन हमारा जो मामला है, हमारा जो साथ है, वो अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ करे। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकल्लाह।